Hello friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dikshit, Subject Matter Expert GK and Current Affairs. आज के इस वीडियो में हम August 25, 2021 का डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस करेंगे. The first news is coming about the Union Minister arrested in Maharashtra for remark on CM. So this news is important about the privileges of the members of the Rajya Sabha. So there is section 22A. So there is section 22A of the rules of procedure and conduct of business of Rajya Sabha. Under this rule, before the arrest of any members in criminal proceedings or in criminal cases, the chairman of the Rajya Sabha, who is the Vice President of India, has to be communicated about the reason of arrest and place of arrest of the member, and the chairman of the Rajya Sabha in return has to place this in the front of the house if the house is sitting, or it has to publish this information to the members through the bulletin. साथ साथ में होम मिनिस्ट्री का भी एक रेगुलेशन है कि बिफोर द अरेस्ट ऑफ नो मेंबर्स कैन बी अरेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा और इन द केस ऑफ लोकसभा विदाउट द प्रायर इंटीमेशन और प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. Then about the Gupkar alliance. So Gupkar alliance is related with the Jammu and Kashmir. There was the presidential order in 2019 which took away the special status to Jammu and Kashmir. Then the political parties in the Jammu and Kashmir, वो सात political parties साथ में आए और उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया. ये सारे के सारे पार्टीज कश्मीर से रिलेटेड हैं. So the Gupkar alliance is the alliance of Jammu and Kashmir political parties. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोर दी अर्स्टवाइल स्टेटस ऑफ JNK. अर्स्टवाइल स्टेटस मतलब आर्टिकल फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which entails separate constitution and separate flag for Jammu and Kashmir. ये सात पार्टी जो गुपकार अलायंस के पार्ट हैं वो हैं PDP, then CPIM, then People's Conference, Awami National Conference, CPI and People's Movement National Conference. These are the part of the Gupkar alliance. The next is economic criterion not the sole basis for creamy layer. Supreme Court का ये judgment है. Indra Sawhney judgment is very important over here. In Indra Sawhney judgment, the Supreme Court has kept the ceiling of 50% on the reservation along with it the creamy layer. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत एक हरियाणा से रिलेटेड है. ये एक हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2016 है. यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फॉलो होता है फॉर गिविंग द रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड दैट इज ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया. बट the Supreme Court has said that in order to identify the backward classes, socially and educationally backward classes, not only the economic criteria but social advancements, higher employment in government services should play an equal role in determining the socially and economically backward classes. Then तमिल नाडु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है. वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है. सो दैट स्कीम इज़ जस्ट लाइक द Manrega which we have in rural area. Manrega is about the livelihood scheme. It provides livelihood in the rural area. So अब Tamil Nadu has come up with the scheme called as Kalyagnar Urban Development Scheme. The total outlay is rupees 1000 crore and it includes building infrastructures like community hall, markets, modern libraries which will be created in the municipalities and town panchayat. The main reason that why Tamil Nadu has come up with such a scheme, because if you will see the rate of urbanization of Tamil Nadu is very higher than as compared to India. According to statistics, the Tamil Nadu is growing very fast and by 2036 60% of the Tamil Nadu will be in urban areas. अच्छा, ये स्कीम फोकस किस किस पे करेगा? जैसे कि अगर आप जानते हैं तो मनरेगा फोकस इज ऑन क्रिएटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. Here we will be focusing on this scheme will be focusing on creating the urban infrastructures like workers will be used for activities such as desilting of water bodies, maintenance of public parks and other places. Now we already know that the current COVID cases are very high in states like Kerala and Maharashtra. So in Kerala, the health minister of Kerala, Miss Veena George, she has taken a call that to ensure jab or inoculation of everyone above 18 years of age. Then worrisome news is coming from Maharashtra. There the recoveries, Maharashtra's fresh cases exceed the recoveries. Means the cases which are coming in Maharashtra now they are greater than the recovery.
हम एडिटोरियल पे बाद में आएंगे. एट लास्ट वी विल डील विद द एडिटोरियल. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे एक स्कीम की बात हुई है, विद्या प्रवेश मॉड्यूल. तो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से जो स्टूडेंट्स लोगों के जो फाउंडेशनल स्टडीज़ में जो डिसरप्शन हुआ है, उस गैप को फिल करने के लिए द NCERT हैज़ कम अप विद द प्रोग्राम कॉल्ड एज विद्या प्रवेश. नाउ दिस is the 12-week play-based module which will be which will act as a transition aid, and it will help students to ease into physical classes for the first time. लॉन्ग टाइम से कोविड डिस्ट्रप्शंस की वजह से क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो उसके वजह से बच्चों को कंफर्टेबल कराने के लिए बिफोर दे एंटर द स्कूल देयर विल बी अ 12-week प्ले बेस्ड मॉड्यूल विच विल बी कॉल्ड एज विद्या प्रवेश मॉड्यूल. ये विद्या प्रवेश मॉड्यूल इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज NCERT. नाउ द विद्या प्रवेश मॉड्यूल का एम क्या है, ये वन लाइनर आ सकता है एलेट में. द विद्या प्रवेश मॉड्यूल इज मेंट टू ब्रिज द गैप्स फॉर the students who will be entering class 1. Now it will also focus on games, art, integration and storytelling tools to achieve the developmental goals of learning. Along with that, it will also focus on health and nutrition. And the three important goals foundational learning के क्या है इंडिया में, जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल के भी हैं. एक तो है फाउंडेशन फॉर लिटरेसी एंड फाउंडेशन फॉर न्यूमरेसी. देन the second one is about the health. उनकी हेल्थ भी ठीक ठाक रहे. so maintaining good health and well-being is also one of the goal of Vidya Pravesh scheme. then Modi Putin discuss crisis in Afghanistan. बिम्स्टेक नेशंस के NSA मीट हुए थे. यहाँ इस मीटिंग में अफगानिस्तान का जो पावर वैक्यूम में जो तालिबान ने कैप्चर किया, उससे क्या फ़र्क होने वाला है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया में, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है. इफ़ यू मस्ट हैव सीन माय वीडियो, मैंने एक शॉर्ट भी लिया है ऑन द गोल्डन क्रेसेंट एरिया. सो दिस एरिया इज़ ऑल अबाउट इज़ द लार्जेस्ट ओपियम ग्रोइंग एरिया, एंड ये एरिया यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर में फॉर टेरर फंडिंग. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. और द राइज ऑफ ओपियम, इलिसिट ओपियम ट्रेड इन साउथ एशिया हैज़ राइजन इन द पास्ट, और वो आगे भी जा सकता है बिकॉज ऑफ तालिबान कैप्चर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रीग्रुपिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स विच टारगेट इंडिया लाइक लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद. सो ब्रिक्स, दे हैव कम अप विद द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान टू डील विद द राइजिंग रेडिकलाइजेशन इन फ्यूचर इन अफगानिस्तान. यहाँ पे जो एक मेन प्रॉब्लम आ रही है कि बिम्स्टेक में अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो चाइना और इंडिया भी है और रशिया भी है, बट यहाँ पे इंडिया का अप्रोच चाइना और रशिया से डिफरेंट है. चाइना और रशिया अभी भी अपने कंसुलेट को मेंटेन करके रखे हैं अफगानिस्तान में. दे हैव नॉट गिवन अप ऑन दैट, बट इंडिया ने अभी सारे कंसुलेट और एम्बेसीज अपने शट डाउन कर दिए हैं. और साथ साथ में चाइना एंड रशिया दे आर डीलिंग विद तालिबान लीडर्स ऑन सर्टन लेवल विच इंडिया इज नाउ राइट नाउ नॉट डूइंग. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ अप्रोच ओवर हियर. देन इंडिया इवैक्यूएट 77 स्ट्रैंडेड पर्सन्स फ्रॉम अफगानिस्तान. हमने कल एक स्पेशल वीज़ा की बात की थी कि देयर इज़ अ स्पेशल वीज़ा विच इज़ बीइंग गिवन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान हु आर कमिंग टू इंडिया, स्पेशली हिंदूज एंड सिख्स. उस वीज़ा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो द नेम ऑफ दैट वीज़ा प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. कल के न्यूज़पेपर में भी आया था. नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आज डिस्कस हुआ है अफगानिस्तान से रिलेटेड. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, India is the member which was elected on January 1st. Now for the month of August, India is holding the chair of the United Nations Security Council. वहाँ पे एक लिस्ट आने वाली है which is called as resolution 1988. This resolution is related with the Taliban leaders. Taliban sanction committee इसको कहते हैं. यहाँ पे तालिबान लीडर्स का इंटरनेशनल सैंक्शन हुआ है. So there are certain top Taliban leaders listed over here. The total number is 135. Now since the Taliban has captured the power, there may be thinking that there may be delisting of some leaders. Delisting का मतलब कि उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाए, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया जाए. ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि जब तक वो नाम नहीं हटेगा तब तक तालिबान के को लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती इंटरनेशनल अरेना में. So but now the India is saying that we have not received any proposal for delisting of Taliban leaders. यहाँ पे एक जो ग्रुप की बात हुई है
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हक्कानी ग्रुप। नाउ हक्कानी ग्रुप ऑल्सो कम्स इन दिस इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट। यहाँ पे हक्कानी ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉम्बिंग ऑफ इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान इन 2008 एंड 2009। Now one liner, Papua New Guinea bans Indian flights. So Papua New Guinea, it has put an indefinitely ban from flights from India from yesterday. Now experts seek faster pace of vaccination. They also highlight the need to allow COVID appropriate behavior and keep complacency at bay. यहाँ पे एक है कि अभी तक इंडिया में पहले 12% था एक महीना पहले, अब टोटल 15% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन मीन्स 18 साल के ऊपर जो है 15% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। हमारा टारगेट है हर्ड इम्यूनिटी का 70%, सो इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द दिस 70%। सो थर्ड वेव जो है वो आ सकता है, बिकॉज सिंस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टिल अनवैक्सीनेटेड और पार्शियली वैक्सीनेटेड, तो ये वायरस को मौका मिलता है अपने आप को म्यूटेट करने का, अपने फॉर्म को चेंज करने का, एंड इट कैन बी द कर्सर फॉर थर्ड वेव। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड थर्ड वेव, क्योंकि वैक्सीनेशन का पेस स्लो है, तो फर्स्ट चीज़ है कि वी शुड वर्क ऑन फास्टरिंग द पेस ऑफ वैक्सीनेशन। द सेकेंड इज वी हैव टू स्टिल फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। थर्ड इज दैट वी शुड focus on the priority groups. Then one liner again, in a first Indian army receives hand grenade from private sector. यहाँ पे एक नागपुर बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। दिस इज द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। इट हैड अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद DRDO। DRDO का एक इंस्टीट्यूशन है, ट्रांसफर ऑफ टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी। इट इज फंक्शन अंडर द DRDO। इसके अंडर देयर वाज अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम DRDO टू इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, एंड देन दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स फॉर इंडियन आर्मी। इसके पहले जो इंडियन आर्मी जो हैंड ग्रेनेड यूज़ करती थी वो जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो डेवलप हुआ था उसी को यूज़ करती थी। नाउ दिस न्यूज़ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एकेडमी अवार्ड्स फॉर पिल्लई एंड मिश्रा। दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड, इंडिया का ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑन ट्यूसडे was conferred on Yashodhara Mishra and N.N. Pillai. So over here Yashodhara Mishra इनके वर्क्स जो हैं इनके ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बुक इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा है, एंड देन ओमचेरी एंड देन पिल्लई ने कौन कौन सा बुक लिखा है। सो समुद्रकूल घर इज बीइंग वाज ऑथर्ड बाय मिस मिश्रा, एंड देन आकाशमिकान ओमचिरियुते दिस इज द वर्क ऑफ मिस्टर पिल्लई। Then coming to S-400 एयर डिफेंस डील ऑन ट्रैक। ये S-400 एयर डिफेंस डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इसमें एक और नाम आया है, वो है काटसा। काटसा का फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक यूएस का एक सैंक्शन एक्ट होता है। जो भी कंट्री विच आर डीलिंग विद द ट्रेडिशनल एडवर्सरीज ऑफ यूएस लाइक रशिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सो अगर वो इन 3 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील करती हैं, सो यूएस कैन इम्पोज sanction under CAATSA. Now over here India is dealing with Russia for S-400 air defense missile. S-400 जो air defense missile है, it is very important missile। इंडिया का एक मिसाइल डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें 2 लेयर्स होते हैं। एक होता है कि पृथ्वी लेयर जो एक्सो एटमॉस्फेरिक टारगेट करता है, एक्सो एटमॉस्फेरिक, एंड फॉर एंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के लिए इंडिया इज गोइंग टू यूज S-400 मिसाइल विच इज गोइंग टू इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। तो ये जो पूरा S-400 मिसाइल है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसकी बात हुई है। सो S-400 मिसाइल इंडिया इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज रिविजन टाइप ऑफ न्यूज़। सो तालिबान मस्ट गारंटी सेफ पैसेज, G7 ने बोला। G7 का इस वक्त चेयर कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। G7 की समिट अभी कहाँ पे हुई थी? कॉर्नवॉल में हुई थी। कॉर्नवॉल कहाँ पे है? यूके में है। देयर दे फॉलोड देयर वाज बिल्डिंग बैक बेटर, ये उनका थीम था, बिल्ड बैक बेटर। और अब G7 ने कहा है कि तालिबान मस्ट गारंटी द सेफ पैसेज। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगस्त 31 नज़दीक आ गया है, अभी भी सारे फॉरनर्स की इवैक्यूएशन नहीं हो पाई है। तालिबान ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 31 के बाद इफ़ देयर इज स्टिल अ फॉरेन प्रेजेंस ऑन द इन अफगानिस्तान देन देयर विल बी रिपरकशंस।
तो दीज आर द थिंग्स। बहुत सारे ऐसे अफगान्स भी हैं जो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं बिकॉज दे सपोर्टेड द यूएस regime फॉर द लास्ट 20 years, बट नाउ तालिबान इज सेइंग दैट जो स्किल्ड अफगान्स हैं उन्हें एयरलिफ्टिंग मत कीजिए। ओके, नाउ कमला हैरिस द 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, शी विजिटेड साउथ एशिया, शी विजिटेड एशिया। हमने ये न्यूज़ परसों भी पढ़ा था, कल भी किया था। नाउ शी हैज़ एक्यूज चाइना ऑफ इंटिमिडेशन इन डिस्प्यूटेड सी। अब यहाँ पे बात सीधा सीधा साउथ चाइना सी का हो रहा है, जहाँ पे द चाइना इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद वियतनाम एंड फिलीपींस एंड इवन ताइवान। तो यहाँ पे पूरा जो है एंटी चाइना रेटोरिक है यहाँ पे। सो आपको बस इतना याद रखना है कि इन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन क्वाड, QUAD, क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग composed of India, USA, Australia and Japan, they try to maintain the open Indo-Pacific region for all. Now again the one-liner news, Pakistan test indigenous rock system. So यहाँ पे पाकिस्तान on Tuesday successfully test launched the indigenously developed guided multi-launch rocket system Fatah-1. देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मतलब एक ही बैरल से बहुत सारे रॉकेट निकलेंगे। तो ये Fatah-1 है, इट हैज़ अ रेंज ऑफ 140 किलोमीटर, इट इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय पाकिस्तान। क्या इंडिया के पास ऐसा कोई मल्टी बैरल रॉक सिस्टम है या? सो इट इज़ पिनाका, द मल्टी बैरल रॉक सिस्टम इज पिनाका। देन जस्ट वन लाइनर दैट समरवीरा मंगला और मंगला समरवीरा, who was the former foreign minister of Sri Lanka, has died. Then यहाँ पे जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जो ऑटो डीलर्स होते हैं, डीलरशिप होती है कार बाइक्स की, दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन MNC एग्जिट्स। मल्टीनेशनल कंपनीज कभी कभी क्या होता है कि Hyundai सपोज दे ट्राई टू एग्जिट द मार्केट, होंडा दे ट्राई टू एग्जिट द मार्केट, तो सप्लाई इसका डिसरप्ट हो जाएगा। सो दे नीड द प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट। Now this is also the center will ensure policy certainty, finance minister। यहाँ पे आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ है वो है इंडिया पिप्स यूएस एज हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की बात हुई है। इस रिस्क इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट होता है द कंट्रीज कैपेबिलिटी टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन बिजनेस एनवायरनमेंट, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रिस्क। इस 2021 में 47 कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है। इसमें जो इंडिया है इट हैज़ टेकन द सेकेंड प्लेस आफ्टर द चाइना फॉर द बेस्ट साउथ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली। ठीक है, ये रिलीज कौन करता है? सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द रियल एस्टेट कंसल्टेंट चुशमैन एंड वेकफील्ड। उसके बाद SBI का रिपोर्ट आया है दैट GDP विल लाइकली टू ग्रो एट 18.5% इन अप्रैल जून क्वार्टर विच इज़ द फर्स्ट क्वार्टर। और बट अगर ये RBI से हम कंपेयर करेंगे तो RBI से थोड़ा कम है। अगर RBI ने जो प्रोजेक्शन किया है अप्रैल जून के लिए दैट इज़ 21.4%। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अजय साव ने, ही इज सेइंग दैट ओपन डिजिटल इकोसिस्टम विल अनलॉक मोर देन $700 बिलियन वर्थ ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया बाय 2030। कौन कौन से सेक्टर्स में? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये किसके चेयरमैन है? ये चेयरमैन है नास्कॉम के। उसके बाद सेंटर अलाउज GM सोया केक इंपोर्ट टिल अक्टूबर। हमने पहले भी कहा था कि सोया इट इज़ 60% ऑफ द इनपुट कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री सेक्टर इज फीड। उसमें से सोया का जो दाम है वो बहुत बढ़ गया था। सो गवर्नमेंट हैड अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ GM सोया। कुछ लोगों ने इसको प्रोटेस्ट भी किया था दैट इट इज़ अ GM क्रॉप, इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू एनवायरनमेंट, बट स्टिल इट हैज़ बीन अलाउड। बट अब इसका जो इम्पोर्ट की जो तारीख है इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टिल अक्टूबर। नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं और नए भी हैं थोड़े से। दे विल एक्सपांड द नॉलेज होराइजन। पहला आता है कास्ट काउंट के बारे में। कास्ट सेंसस की बहुत ज़्यादा बात हुई है बट अभी तक जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने अपना एक वो नहीं बताया है, तो बस इसके ऊपर एक सोसाइटल डिबेट चल रहा है कि हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्यों है। तो हम देखेंगे कि कास्ट सेंसस की हमारे पास ज़रूरत इसके लिए है बिकॉज द लास्ट टाइम द कास्ट सेंसस विच वॉज कैरिड आउट वॉज इन 1931 एंड डेट ऑल्सो अंडर ब्रिटिश रूल। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इंडिया का अगर हम ये पढ़ेंगे कि दैट एज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ दलित्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय
दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब हमारे यहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन्हें हमें एम्पावर करना है बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उनका साथ साथ में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए टू रियलाइज द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एज एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। पर इसके लिए हमारे पास डेटा होना बहुत ज़रूरी है। बट साथ साथ में एक प्रॉब्लम भी है इंडिया का कि जो कोटा हमने आज तक दिया है उसका जो बेनिफिट है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं रहा है। जो एम्पावर्ड कम्युनिटी है, जो लोअर कास्ट में भी जो एम्पावर्ड है, उन्होंने इसका ज़्यादा फायदा उठाया है। सो दैट इज नाउ अ डिमांड ऑफ सब कैटेगराइजेशन। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है कि right now government is withdrawing from many sectors and government is not the largest employer. So there is a second clamor which is going on in India, is that why not to provide reservation in private sector. So these are some of the problems, but there are fears also that if we go for the caste census तो क्या हो सकता है कि social rift बढ़ सकती है। सोशल रिफ्ट तभी बढ़ेगी जब हम रिजर्वेशन के मुद्दे को पॉलिटिसाइज करेंगे। हमें उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, बट वी शुड लुक टू द रिजर्वेशन एज द मेथड of realizing the dream like equality of status and opportunity as which are the part of our noble vision of constitution. So India should go for it, but rather than politicization, empowerment of socially and educationally backward class should be important. इन फ्री फॉल में लेबनान की बात हुई है। लेबनान में पिछले साल ब्लास्ट हुआ था, तो उनके जो पोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। यहाँ पे इस आर्टिकल में एक लेबनान का जो पॉलिटिक्स है, हाउ इट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर हैविंग द स्टेबल गवर्नमेंट। तो अब बेरूत में, लेबनान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि जो लेबनान का प्रेसिडेंट है ही शुड बी मैरोनटाइन क्रिश्चियन, द सेकेंड इज़ द प्राइम मिनिस्टर शुड बी सुन्नी एंड द पार्लियामेंट स्पीकर शुड बी शिया। अब कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो सुन्नी है, ओके, इवन आफ्टर द 3 अपॉइंटमेंट दे हैव नॉट बीन एबल टू यूनाइट द होल कंट्री। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अब वहाँ पे एक पॉलिटिकल ग्रुप है हेजबोल्ला, इसका आपने नाम सुना होगा, येमेन से रिलेटेड। इट इज़ अ शिया मिलिटेंट ग्रुप। अब वहाँ पे क्योंकि ऑयल का बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है, सो हेजबोल्ला विच इज़ सपोर्टेड बाय ईरान क्लैंडस्टाइन इन अ क्लैंडस्टाइन वे, अब वो ईरान से सपोर्ट मांगेगा टू increase the supply of oil in the country and to save the economy. Then coming to climate change, a catalyst for Arctic cooperation। यहाँ पे जो दो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है वो है एक आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल एक है यहाँ पे। सो आर्कटिक काउंसिल जो है ये 8 आर्कटिक कंट्रीज से बना हुआ है, द कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड रशियन फेडरेशन, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब 2013 में इसके 6 ऑब्जर्वर्स भी बने। दोज आर चाइना, जापान, इंडिया, इटली, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर टू 13। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बाय द कोल्ड वॉर में आर्कटिक का बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था, बट जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ द जियो पॉलिटिकल importance waned out. But in 2014 it was revived again when there was a regional tension going on between Russia and Ukraine. उसके बाद से इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है और इसका जो एक मिलिट्रलाइजेशन है वो बढ़ गया है। बट वी हैव टू लुक टू द आर्कटिक रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो, दैट इट कैन सर्व एज द रिसर्च इन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, आर्कटिक के ऊपर भी क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर हुआ है, but rather than focusing on reviving the environment to restore the ecology of Arctic region, the countries are looking for exploiting the natural base of Arctic region. Second is sea lanes. So इसमें चाइना सबसे आगे है। चाइना consider itself as a far Arctic region, और यहाँ पे चाइना is planning to have a sea lanes to directly reach Europe bypassing the Asia, where China has problem with South Asian and Southeast Asian countries. So over here the author is trying to say that we should give priority to save this environment rather than neutralizing the Arctic Ocean and exploiting it for the natural resources. Then the ugly face of crime fighting move, यहाँ पे नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की बात हुई है। यहाँ पे उस सिस्टम को समझाया गया है और
उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं उसके बारे में ऑथर ने डिस्कस किया है. सो लेट्स मूव हियर. तो सबसे पहले ये है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या. सो दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट नेशनल, दिस इज अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. सो यहाँ पे जो है, अगर इस टेक्नोलॉजी को समझना है तो यू कैन जस्ट रीड इट. इट विल फंक्शन एज अ नेशनल लेवल रिसर्च प्लेटफॉर्म. It will facilitate the investigation of crime or for identifying a person of interest regardless of face mark, makeup, plastic surgery, beard or the hair extension. इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंट्रूसिव, और साथ साथ में अगर आप देखेंगे दैट दिस विल कलेक्ट, प्रोसेस एंड स्टोर द सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन, फेशियल बायोमेट्रिक्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स. सो दिस इज गोइंग अगेंस्ट द प्राइवेसी. ओके, तो अगर हम दो जजमेंट की बात करें, एक जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 एंड अनुराधा भसीन, इन दोनों केस में एक जस्टिस पुट्टास्वामी में प्राइवेसी वॉज मेड द फंडामेंटल राइट, एंड इन अनुराधा भसीन केस अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वॉज प्रपोज्ड कि अगर हम किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं, अगर प्राइवेसी अगर बीच में आ रही है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, देयर शुड बी अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. So the test of proportionality says that the encroachment on the right to privacy requires the existence of law to satisfy a legality of action, and there must exist a need in terms of a legitimate state interest, and the measure adopted must be proportionate. कि जितने की ज़रूरत है उतना ज़्यादा ही आप खाली इंट्रूसिव हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. बट अगर हम ये फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, कि इसकी जो अथॉरिटी है वो किसी लॉ से नहीं आ रही है. बिकॉज इन अनुराधा भसीन केस लॉ की बात हुई है कि लॉ होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे कोई लॉ नहीं है. दिस टेक्नोलॉजी इज़ द आउटकम ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. उसके साथ साथ अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी क्या करेगा कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा होगा, वहाँ से ये फेसेस के जो एंगल्स होते हैं, जॉ के जो लाइंस होते हैं, लिप्स का जो आउटलाइंस होता है, वो सब उसको कलेक्ट करेगा. बट इस सीसीटीवी में बहुत ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो क्रिमिनल नहीं हैं. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम है कि एनोनिमिटी, देयर विल बी द लॉस ऑफ एनोनिमिटी बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. और साथ साथ में अगर हम देखेंगे कि अभी का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है एंड द रूल्स, जो IT गाइडलाइंस जो रूल्स हैं या डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इट इज़ गिविंग इमेंस पावर टू द गवर्नमेंट for the purpose of surveillance, which does not hold good according to the author for democracy like India. उसके बाद आज का जो ये जो लीगल चैलेंजेस इन रिकग्नाइजिंग द तालिबान है, इसमें जो कुछ स्टेजेस हैं कि तालिबान को रिकग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्या है. तो यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ हियर, गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, हमें ये डिटरमाइन करना चाहिए कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना है या स्टेट को रिकग्नाइज करना है. सो ऑथर इज सेइंग कि द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान इज ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड, बट इन ऑर्डर टू गिव रिकग्निशन टू गवर्नमेंट, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसकी कंट्रोल कितनी है एंड इज इट डेमोक्रेटिक. तो अगर हम अब तालिबान से इसकी कंपैरिजन करें तो तालिबान आज पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल कर रहा है, दैट्स फाइन. तो इसको मिल सकता है रिकग्निशन इन द इंटरनेशनल लॉ. बट there is one more doctrine that is called as doctrine is the effective control theory is that of democratic legitimacy. अब democratic legitimacy एक second doctrine है. तो democratic legitimacy में मतलब उसकी acceptability कितनी है उस गवर्नमेंट की अपने लोगों में. सो वो एक दूसरा डॉक्ट्रिन है. तो ये जो दूसरा डॉक्ट्रिन है इससे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि उन्हें लेजिटिमेसी न मिले, क्योंकि तालिबान का जो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है वो सही नहीं है. ओके, सो बट स्टिल पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि जो कंट्री, जो लीडर्स ने मिलिट्री वो करके मिलिट्री कूप करके पावर को रिकग्नाइज किया और कुछ लीडर्स जो हैं वो एग्जाइल में चले गए, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन एग्जाइल लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव माना उस कंट्री का. तो ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कमिंग टू द सेरो सर्विस, द सर्किट ऑफ सेरो सर्विस. तो यहाँ पे सेरो सर्विस क्या होता है? So a sero surveillance survey is the ascertains the prevalence of past infectious disease in a population, and in the case of COVID-19 it helps to detect whether antibodies to SARS-CoV-2 are
प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, इसका मतलब कि एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड है कि अगर मेरे अंदर एंटीबॉडीज पाए गए अगेंस्ट द कोविड-19, इसका मतलब कि मेरे पास वो डिजीज़ थी। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं सेरो सर्वे के? पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये हेल्प करता है टू identify the vulnerable population, what should be the extent of vaccination. This is the first important news. The second is the to find out whether community transmission has taken place or not, कि disease की जो community transmission है वो हो रही है या नहीं हो रही है. Then the third use of sero surveys is assess to how far or close we are to herd immunity. जैसे अब COVID-19 के लिए herd immunity is 70%. ओके, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटली सेरो सर्वे के डेटा पे रिलाई करना, उससे अच्छा ये भी है कि हम सेरो सर्वे डेटा पे को भी करें, साथ साथ में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेरो सर्वे लाइक दैट इट इज़ नॉट रैशनल फॉर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स टू एडवाइज गवर्नमेंट टू एम्बार्क अपॉन सिटी वाइज सेरो प्रेवलेंस सर्वे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोविड-19 because they are no more useful than our COVID-19 appropriate behavior and vaccination to control the pandemic. ये स्टैटिक्स के थ्रू पता लगाते रहना हमेशा कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा. हम अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ एलिमिनेटिंग द कोरोना. So that's all for today. Let's meet tomorrow with the new Hindu analysis. Till then, have a nice day. Thank you.